آج انتخاب کے سلسلے میں کچھ اہم معلومات اور کچھ اہم نظام الاوقات آپ حضرات کے ذریعے سے عوام الناس تک پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ تمام لوگوں کو پتہ ہے کہ انجمن اسلامیہ انتخاب 2025 کی کارروائی جاری ہے۔ اس سلسلے میں 19 دسمبر 2025 کو منتظمہ کی ڈرافٹ لسٹ جاری کی گئی تھی۔ دفتر کے باہر میں چسپاں بھی کیا گیا تھا اور اس کو سوشل میڈیا کے ذریعے سے اور ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے سے اس کو عام بھی کیا گیا تھا، اور اس کو جاری کرتے ہوئے تمام لوگوں سے یہ اپیل کی گئی تھی کہ یہ ڈرافٹ لسٹ ہے، فائنل نہیں ہے۔ اگر کسی کو ڈرافٹ لسٹ میں درج کسی بھی معلومات کے حوالے سے اعتراض یا تصحیح درکار ہو، یا کسی کو اپنے نام وغیرہ سے متعلق کوئی غلطی نظر آئے، کسی نام کا اندراج غلط ہو، کوئی اہل شخص چھوٹ گیا ہو، یا کوئی غیر متعلقہ نام غلطی سے درج ہو گیا ہو، تو اپنی شکایت یا تصحیح کی درخواست تحریری طور پر 23 دسمبر 2025 تک انتخابی دفتر میں جمع کر سکتے ہیں۔ چنانچہ اس اعلان کے بعد 250 درخواستیں انتخابی دفتر کو موصول ہوئی، 250 تجاویز آئیں ہم لوگوں کے پاس۔ یہ 23 دسمبر 2025 تک کا وقت تھا، اس وقت تک یہ درخواستیں ہم لوگوں کو موصول ہوئی۔ ایک دن کے بعد 24 دسمبر 2025 کو انتخابی دفتر ہی میں علماء کرام، پنچایتوں کے ذمہ داران، سماجی کارکنان اور اس طرح کے دانشور طبقات پر مشتمل ایک بڑی میٹنگ ہوئی، اور انتخاب سے متعلق بہت سارے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ کافی دیر اس پر بحث ہوئی، مشورہ ہوا۔ آپسی مشاورت کے بعد جو 250 درخواستیں اور تجاویز آئیں یا شکایتیں اعتراض ہم لوگوں کے پاس موصول ہوئے تھے، تمام لوگوں نے باتفاق رائے باہمی مشورے سے 12 آدمیوں پر مشتمل ایک ٹیم بنائی تاکہ ان چیزوں پر غور کرے، اس کی اسکروٹنی کرے اور جانچ پڑتال کرے۔ ناموں کا تذکرہ کر دینا بھی زیادہ اچھا ہے تاکہ آپ لوگوں کے توسط سے لوگوں کو پتہ چل جائے۔ ان 12 ناموں میں جس ترتیب سے اس میٹنگ میں بات آئی تھی ناموں کی، اسی ترتیب سے آپ لوگوں کے سامنے ہم بھی کہتے ہیں کہ مفتی طلحہ ندوی صاحب، حاجی محمد فیروز صاحب، مجید انصاری صاحب، محمد رضوان صاحب، سیف الحق صاحب، حاجی محمد مظہر صاحب، معراج گدی صاحب، شمسو خان صاحب، شجاع الدین صاحب، جنید عالم صاحب، سہیل اختر صاحب، اور ایک نام تھا اسلام صاحب، لیکن ان کی جگہ پر پھر مشورے سے ماجد عالم کا نام طے کیا گیا۔ یہ 12 آدمی کی ٹیم تھی۔ اس ٹیم کی پہلی میٹنگ 4 جنوری 2025 کو ہوئی، 4 جنوری 2025 کو۔ اس کے بعد یہ میٹنگ ہوتی رہی اور 25 مارچ 2026 تک پہلی میٹنگ ہوئی آپ کے 4 جنوری 2026 کو، اور ابھی 2 دن پہلے 24 مارچ یعنی گزشتہ کل 24 مارچ 2026 تک اس کی درجنوں میٹنگیں ہوتی رہی۔ ایک ایک درخواست، اعتراض، شکایت، ان تمام چیزوں کو پوری ٹیم نے اس کو کھنگالا، اس کو دیکھا اور اس کو ملان بھی کیا۔ بہت سارے لوگوں کو یہاں پر دعوت دے کے بلایا، ان کے کاغذات کو دیکھا، ان سے بات چیت کی۔ اس کے علاوہ بہت سارے امور پر تبادلہ خیال بھی کیا آپس میں بھی، اور لوگوں سے جانکاریاں بھی لی گئی، ٹیلی فونک بھی رابطہ کیا گیا، اور ان تمام 12 حضرات کی ٹیموں نے باتفاق رائے ان 250 درخواستوں پر نظر دوڑانے کے بعد، غور و فکر کرنے کے بعد ایک فائنل نتیجہ تیار کیا کہ کن درخواستوں کو منظور کیا، یعنی کہ اس کو ووٹر لسٹ میں شامل کیا جائے، یا اب ان کو اور ان کے تحقیق و تفتیش اسکروٹنی کے بعد کن کو شامل نہ کیا جائے۔ اس کے فائنل ڈاٹا تیار ہوا اور اسی بنیاد پر فائنل لسٹ تیار کی گئی، جو آج تھوڑی دیر میں ہم لوگ اس کو شائع کریں گے۔ اسی بنیاد پر یہ تو ہوئی یہ بات جو درخواستیں آئی تھیں۔ ایک بات تو یہ آئی کہ دوامی ممبر، ہم کو لگتا ہے تقریباً 52 لوگوں نے اس کی درخواست دی تھی دوامی ممبر کے لیے، جنہوں نے کسی بھی وقت انجمن اسلامیہ کو ڈونیٹ کیا ہو۔ اس میں ایک بائیلوج میں ایک تشریح ہے، اور بائیلوج میں ایک بات لکھی ہوئی ہے کہ ہر وہ پیسہ یا رقم جو انجمن اسلامیہ کے مرکزی دفتر میں یعنی ہیڈ آفس میں
जमा हुई हो और उसकी रसीद अंजुमन की तरफ से दी गई हो, जिसमें जनरल सेक्रेटरी अपने वक्त के जनरल सेक्रेटरी का दस्तखत भी हो और अंजुमन की मुहर भी। ये बायलॉज में शर्त में उसमें रखी गई है। चुनांचे दवामी मेम्बरान पर गौर किया गया और तमाम चीज़ों पर गौर करने के बाद जो हम लोगों का दरखास्तें मौसूल हुई हैं, क्योंकि चंद एक में इन शराइत पर वो दरखास्तें नहीं थी, इसलिए उन दरखास्तों को शामिल नहीं किया जा सका। बाकी अक्सर की तादाद ये है दवा मेंबर की जिनको इस ज़ाब्ते को उन्होंने जो फुलफिल कर रहे हैं, और उन तमाम नामों को उसमें शामिल कर दिया गया। एक बुनियादी बात ये याद रखने की है कि बायलॉज में ये बात शामिल है कि दवामी मेंबर वो हैं जिन्होंने अंजुमन इस्लामिया की ऑफिस में पैसा जमा किया हो और अंजुमन इस्लामिया के ऑफिस से उनको रसीद दी गई हो, जिसमें अपने वक्त के जनरल सेक्रेटरी का दस्तखत भी हो और उसकी मुहर भी हो। इत्तेफाक की बात यह है, ये भी तशरीह कर देना ज़रूरी है शहरी हालात की मुनासिबत से, कि मौजूदा जो रनिंग कमेटी है उस कमेटी में से कोई ऐसे दवामी मेंबर के दस्तखत का नहीं है। जो भी है इससे पहले के टर्मों के दस्तखत हैं और वो दफ्तर से में वो रसीद दी गई है और वो पैसा जमा किया गया है। एक तो ये। दूसरी चीज़ ये है कि आमतौर पर ये मुगालता पैदा हुआ है। एक ये कि ट्रस्ट और सोसाइटी अगर रजिस्टर्ड है तो उसमें 2 नाम आएंगे या 2 नाम दिया जाएगा, या अगर जो है हम बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं, झारखंड लेवल पर काम कर रहे हैं, तो 2 नाम आएगा। हालांकि ज़ाब्ते में इस तरह की कोई बात नहीं है। ज़ाब्ते के मुताबिक कोई भी फलाही तंजीम हो या कोई भी रिफाही तंजीम हो या सोसाइटी हो या ट्रस्ट हो, तो उसमें एक एक नाम आएंगे। लिहाजा इसी ज़ाब्ते के मुताबिक उनमें से एक एक नाम लिए गए हैं। हाँ, मजहबी जो इदारे हैं उसमें लिखा हुआ है कि मजहबी मुस्लिम जमात, उसमें तशरीह भी की गई है कि जमात इस्लामी, जमीयत उलमा, इमारत शरिया, सुन्नी जमीयत उलमा वगैरह वगैरह तशरीह की गई है। उनसे 2 ले जाएंगे। अगर कोई वकला की टीम है, वकला की कमेटी है, या डॉक्टरों की या इंजीनियर की, उसमें ये भी तशरीह है कि आज़ाद पेशा अफराद को, अगर कोई कमेटी है या ऑर्गेनाइजेशन है तो उनसे भी 2 अफराद लिए जाएंगे। बाकी पंचायतों से 5, वरना हमको बाकी जो कैटेगरी है उसमें से एक लिए जाएंगे। उसी को मद्देनजर रखते हुए फाइनल लिस्ट को तैयार की गई है। फाइनल लिस्ट को रजिस्टर्ड और गैर रजिस्टर्ड का जहाँ तक तज़किरा है, रजिस्टर्ड और गैर रजिस्टर्ड का ज़ाब्ते में कोई जिक्र ही नहीं है। लिहाजा वो रजिस्टर्ड हो कि गैर रजिस्टर्ड हो, उसी ज़ाब्ते के मुताबिक उसको हम लोगों ने फाइनल लिस्ट तैयार किया है। अब आपके सामने आगे 2026 है। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमारी टीम इंशाअल्लाह उसको इंतखाबी दफ्तर के बाहर में उसको चस्पा हमारी टीम करेगी, और जो आवाम के मुआयना के लिए, इसी के साथ उसके सॉफ्ट PDF फाइल सोशल मीडिया के ज़रिए से और डिजिटल मीडिया के ज़रिए से हम लोग शाम तक इसको जारी करेंगे। और ये प्रेस रिलीज भी इस तमाम जानकारियों पर मुश्तमिल हम लोगों ने तैयार किया है, जिसको प्रिंट मीडिया में भी हम लोग हवाले करेंगे, और आप तमाम जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है इन तमाम चीज़ों का आप लोग तो इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। फाइनल लिस्ट जारी करते हुए इंतखाब का मुकम्मल निज़ामुल अवकात यानी शेड्यूल का भी आज ऐलान किया जाता है, जो टीम ने काफ़ी देर मशवरा के बाद तमाम चीज़ों पर गौर खोज करते हुए इन तमाम चीज़ों को तय किया है। और वो निज़ामुल अवकात या इंतखाब का शेड्यूल इस तरह है कि उम्मीदवारी फार्म, इंतखाबी दफ्तर से उम्मीदवारी फार्म हासिल करने और दाखिल करने के लिए 3 दिन का वक्त दिया गया है। 28 मार्च, 29 मार्च और 30 मार्च। ये शनिचर, इतवार और सोमवार। इतवार को भी दफ्तर खुला रहेगा और वक्त रहेगा 11 बजे से लेकर के 4 बजे शाम तक। वक्त की पाबंदी ज़रूरी होगी। और इंतखाबी दफ्तर अंजुमन इस्लामिया अंजुमन प्लाजा दूसरी मंजिल से ये फार्म हासिल की जा सकती है और वहीं पर फार्म जमा करना। एक तो ये। उसके बाद जो फार्म मौसूल होंगे इंतखाबी दफ्तर को, उसकी जांच पड़ताल और स्कूटनी 31 मार्च को स्कूटनी उसकी होगी, और उसकी भी टाइमिंग है 11 बजे से लेकर के शाम 4 बजे तक, और वही इंतखाबी दफ्तर में ये अमल किया जाएगा। उसके बाद 1 अप्रैल 2026 को नाम वापसी की तारीख है, और वो भी वक्त वही है 11 बजे सुबह से लेकर के 4 बजे शाम तक, और इंतखाबी दफ्तर ही में ये अमल होगा। उसके बाद उसी तारीख को शाम 6 बजे इंतखाबी दफ्तर के ज़रिए से
हतमी उम्मीदवारों का ऐलान शाये किया जाएगा। अगर किसी ने नाम वापस लिया, स्क्रूटनी के बाद जो हतमी उम्मीदवार बच जाएंगे, ओहदे की मुनासिबत से तमाम लोगों का ऐलान 1 अप्रैल को शाम को 6 बजे इंतखाबी दफ्तर से इंशाअल्लाह किया जाएगा। 2 अप्रैल को इंतखाबी निशानात की तकसीम उम्मीदवारों के दरमियान में की जाएगी, इंतखाबी दफ्तर में ही, और उसकी भी टाइमिंग है 11 बजे सुबह से लेकर के शाम 4 बजे तक इंतखाबी निशानात की तकसीम की। वोटिंग की तारीख जो तय की गई है वो 12 अप्रैल 2026 को, और उसके लिए टाइम तय है 8 बजे सुबह से लेकर के शाम 4 बजे तक। इंशाअल्लाह ये वोटिंग ग्राउंड फ्लोर हज हाउस कडरू रांची में होगी, और ग्राउंड फ्लोर हज हाउस कडरू रांची से ही 12 अप्रैल को वोटिंग के बाद ताखिर हो जाए, या 13 तारीख शुरू हो जाए 12 तारीख ही को, और अगर 13 तारीख शुरू हो जाए तो 13 तारीख को लगातार इसको काउंटिंग करते हुए नताइज का उसी तारीख को ऐलान किया जाएगा। एक अहम चीज़ नोट इसमें यह है कि उम्मीदवारी फीस जो फार्म लेते वक्त अराकीन को जमा करने हैं, उसमें सदर के लिए 2500 रुपये, नायब सदर के लिए 2100 रुपये, जनरल सेक्रेटरी के लिए 2000 रुपये, ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए 1500 रुपये, और रुकन आमला के लिए 1000 रुपये तय की गई है। ये रकम और ये फीस की जो रकम है ये वापस नहीं होगी किसी भी सूरत में। नंबर 2, उम्मीदवारों को जो निशान दिया जाएगा और उम्मीदवारों की जो तरतीब बनेगी, निशान की तरतीब बनेगी, ये जो फार्म जमा करेंगे या फार्म खरीदेंगे या फार्म वसूल करेंगे दफ्तर से, फार्म की नंबरिंग की वजह से वो सीरियल नंबर नहीं होगी। आपसी मशवरे से ये तय हुआ है कि उसके लिए बाज़ाब्ता कुरानंदाजी की जाएगी, निशान के लिए भी और नंबरिंग के लिए भी। जो तरतीब होगी और जो निशान होगा, जो निशान अलॉट होगा, वो बाज़ाब्ता कुरानंदाजी होगी। जिसके मुकद्दर में जो निशान, जो तरतीब मिले, उसी तरतीब के मुताबिक जो है उनके लिए वो निशान तय होगा, और वो तरतीब भी उसके लिए तय होगी, और उस निशान में और उस तरतीब में किसी तरह की भी कोई तब्दीली नहीं होगी। वो इंतखाबी दफ्तर का जो तय किया हुआ ज़ाब्ता है उसी के मुताबिक उसको अमल किया जाएगा।